Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Ramzan, speaking from Superior College Ghana. बेटा आज हम अपना लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड पेज नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद, he went to the shoemaker. मौलवी साहब मोची के पास गए and paid him 5 rupees and 12 annas, और उसको 5 रुपए और 12 आने दे दिए. and bought the shoes, और जूते खरीद लिए. leaving his shop, he vowed, उसकी दुकान छोड़ते हुए उसने कसम खाई. vowed mean swear, promised, कसम खाई with Allah, अल्लाह की, as his witness, कि अल्लाह गवाह हो जाओ. witness mean observer, onlooker, spectator, watcher. never to use the powdered tobacco that he loved. अब वो कभी भी नस्वार इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे वो प्यार करता था. When Mehru reached the age of 14, Maulvi Abul's prayers became intense and prolonged. जब मेहरुन निसा, मौलवी साहब की बड़ी बेटी 14 साल की हो गई, तो मौलवी अबुल की दुआएं और भी खुशू व खजू के साथ और तवील हो गई. इंटेंस मीन एक्सट्रीम, पोटेंट, विगरस. प्रोलॉन्ग्ड मीन तवील हो गई, एक्सटेंड, एक्सटेंसिव, स्ट्रेच. ड्यूरिंग रमजान, माह सियाम के दौरान, he led the nightly तरावी prayers as usual, रूटीन के मुताबिक नमाज तरावी पढ़ाया करता था. But the same Maulvi Abul, who never had made a single mistake, लेकिन वही मौलवी अबुल जिसने कभी एक भी गलती नहीं की थी, began straying from one surah of the Holy Quran to another. उसने भटकना शुरू कर दिया एक सूरत से कुरान पाक की दूसरी सूरत तक. straying mean digress or deviate. Sometimes, बाज़ औक़ात unconsciously, he repeated the same chapter. Unconsciously mean लाशऊरी तौर पर, unintentionally, habitually, carelessly, automatically. He repeated the same chapter twice. वो एक ही सूरत को 2 बार पढ़ जाते. In the same part of prayer, एक ही रकत में 2 बार पढ़ जाते. Once when Chaudhry Fatedar, the member of the district board, reprimanded him for his mistake. एक दफा जब चौधरी फतेहदार ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर भी हैं, उन्होंने उसकी गलती पर उसको डांटा, उसको झिड़का. reprimanded mean rebuke, scold, admonish, censure, criticism. तनकीद की उसकी गलती पर. मौलवी अबुल felt like shouting back at him. मौलवी साहब का दिल चाहा कि मैं चिल्लाकर उसको कहूं कि you have a whole row of boys. तुम्हारे पास तो एक लड़कों की लाइन लगी हुई है. चौधरी साहब, had you also been blessed with a daughter, कि अल्लाह ताला ने आपको बेटी से भी नवाजा है, then you would understand, फिर आपको समझ आएगी, why I repeated a chapter of the Holy Book twice, कि मैं कुरान पाक की सूरत को 2 बार क्यों पढ़ जाता हूं.
But Chaudhry Fateh Das' censure was purely religious. लेकिन चौधरी साहब की जो तनकीद थी, सरजंश थी, क्रिटिसिज्म थी, वो खालिस्तन मजहबी थी. Why? He was the same rich pious Muslim. वो भी उतना ही परहेजगार मुसलमान था. The head of the village, गांव का सरबराह भी था. Who every evening for years, जो हर शाम कई सालों से had been sending मौलवी साहब को बेच रहा था home baked bread, घर की पकी हुई रोटी, smeared with घी लगी हुई, smeared mean slapped, and an utter bowl of दाल, और दाल का एक बड़ा प्याला भेजा करता था. He was very regular in his offering. चौधरी साहब अपनी नजरों नियाज में बहुत ही पाबंद थे. If for some reason, अगर किसी वजह से the daily offering of the evening meal was delayed, शाम के खाने को कभी देर हो जाती, चौधरी फतेहदार would carry it himself. चौधरी फतेहदार खाना खुद लेके आ जाते to Maulvi Abul's house, मौलवी अबुल के घर, and apologize mean माफी मांगना, say sorry, express regret, माफी मांगते for the delay, ताखीर हो गई, देर की माफी मांगते, saying, ये कहते हुए, I am terribly sorry मौलवी जी, मैं बहुत माजरत चाहता हूं, my wife is unwell, मेरी बीवी बीमार है. Unwell mean ill, बीमार है. So the maid has cooked the food, नौकरानी ने खाना बनाया है. He sincerely considered the daily gift to Maulvi Abul. वो मुखलस्तन, खालिस्तान समझा करते थे, ये रोजाना का तोहफा मौलवी अबुल को दिया करते थे, a part of his daily worship, जिस तरह उसकी रोजाना की इबादत हो. Conscious of the ever-increasing responsibilities of her husband. Conscious of being aware, बाखबर होते हुए अपने खामन की बढ़ती हुई जिम्मेदारियां, responsibilities mean duty, charge, liabilities. Our husband अपने खामन की. Zebun Nasa too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. ज़ेबुन नसा ने भी कुरान पाक गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था. On Thursday, हर जुमेरात को, when each of the girls brought a small portion of sugar, portion in part, हर जुमेरात को लड़कियां छोटा हिस्सा ऑफ शुगर, चीनी का, ऑन ब्रेड, रोटी के ऊपर रखकर लाया करती थी. ज़ेबुन नसा would arrange for at least 2 baskets. ज़ेबुन नसा इंतजाम कर लिया करती थी, बंदोबस्त कर लिया करती थी कम से कम 2 बास्केट्स का. These small baskets, ये छोटी टोकरियां, were used to store morsels, ये टुकड़े रखने के लिए इस्तेमाल हो जाती. morsels mean pieces, particles, slices, bits, fragments of home baked bread. घर की बनी हुई रोटियों के टुकड़े उस टोकरियों में जमा कर लिया करती थी.
But there was yet another problem. लेकिन अभी एक और बड़ा मसला था. Besides bread to fill their bellies, रोटी के अलावा, उनके पेट भरने के अलावा, they also needed clothes. उनको कपड़ों की भी जरूरत थी. To cover their bodies, अपना जिस्म ढांपने के लिए. चौधरी फतेहदार used to present new clothes to मौलवी अबुल. चौधरी फतेहदार पेश किया करते थे कपड़े मौलवी साहब को once a year, साल में एक बार. After every harvest, हर कटाई के मौसम के बाद, harvest means reaping, कटाई के मौसम के बाद मौलवी साहब के घर सालाना कपड़े भेजा करते थे. Whenever these clothes came, जब भी ये कपड़े मौलवी साहब के घर आया करते थे, a telling shout would spring up in मौलवी अबुल's house. तो मौलवी अबुल के घर एक दर्जी की दुकान जैसे खुल जाती थी. Spring up mean appear, existence, shoot up. Zebun Nisa, with the assistance of Mehrun and Zabda. ज़ेबुन निसा, मेहरून और ज़ब्दा और शमसुन की मदद के साथ, assistance mean help, coordination, would cut them into smaller outfits. उनको छोटे टुकड़ों में काट दिया करती. Outfits mean dresses, clothes for the younger kids, छोटे बच्चों के लिए. If he ever received some extra money, अगर कभी उनको अज़ाफ़ी पैसे मिल जाते, this bonus would usually be locked up in the tin box. तो ये जो अज़ाफ़ी रकम थी, उसको एक छोटे से डिब्बे में रख दिया जाता और ताला लगा दिया जाता. With the passage of time, वक्त गुजरने के साथ साथ the appetites of the children increased. बच्चों की भूख में और भी इजाफा होता गया. Appetites mean hunger, ravenous, palate, audacity. बच्चों की भूख में और इजाफा हो गया. मौलवी अबुल was caught in the world of life. मौलवी अबुल जिंदगी के गर्दाम में फंस गया, जिंदगी के भंवर में फंस गया. Time had not been kind to him. वक्त उस पर मेहरबान नहीं था. The hair around his temples had become silvery white. उसकी कनपटियों पे बाल सफेद हो चुके थे. The grip of his teeth on his gums for long been loose. दांतों की गिरफ्त भी मसूड़ों के जो दरमियान काफी देर से वो ढीली पड़ चुकी थी. But his voice remained resonant. लेकिन उसकी आवाज आज भी गूंजदार थी. Resonant mean echoing, vibrant, sonorous, गूंजदार आवाज थी मौलवी साहब की अभी भी. However, sometimes that too quivered. लेकिन कभी कभार उसकी आवाज कांपती थी. Quiver mean shake, quake, shudder, judder, vibrate. उसकी आवाज कांपती थी. चौधरी फतेहदार was the only one who knew the reason. उस गांव में से चौधरी साहब ही थे जो इसकी वजह जानते थे. मौलवी अबुल had once opened his heart to him. मौलवी अबुल ने एक दिन अपना दिल खोल दिया चौधरी साहब के आगे. About a suitable match for Mehrun.
कि महरून के लिए एक अच्छा सा मुनासिब रिश्ता तलाश करें। The Chaudhary had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. चौधरी साहब गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत को, सलाहियत को अच्छी तरह जानता था। एलिजिबिलिटी मीन प्रोफिशिएंसी, क्वालिफिकेशन, फिटनेस। गांव के तमाम नौजवानों की अच्छी तरह सलाहियत को चौधरी साहब जानते थे।